Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay, so good evening, everyone. Today I have. Okay, so good evening, everyone. Today I have joined with. Good evening, everyone. Today I have joined with. Good evening, everyone. Today I have joined with. Sir, you have joined with both. I know that. I have unmuted the second one. No, Sir, the why is echoing? they don't know. Mm, 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 mm. The second one is. Windows. No, I'm thinking when that is unmute, then why the sound is coming? Okay, let me keep that in some other room. Harsh, please mute yourself. Yes, sir, you are audible. Okay. Okay, so what next? Today, thoda sa I'm Sir, why you use two devices? from that Sir, laptop I have logged in. And with the help of second laptop, I'm trying to
Okay. So now I think we have discussed a lot about how this computer has come into existence. We also discussed about the binary system. We discussed about memory. We discussed about the complete structure, input devices, CPU, output devices. We have discussed about the operating system, which is Windows 7 or Windows 10 going on. We have discussed about external memory, internal memory, RAM, ROM. So we have discussed the basics of Sir, ah. sir, is Windows 8.1 is better than Windows 10? So I think in the last class I discussed that right now Windows 10 is going on, but what I have observed that most offices, most people, they still prefer Windows 7 and MS Office 7 because they believe that the sound is coming from Harsh, your house. No, sir. Mute yourself. Yes, Harsh, there is a lot of sound in your house. So you have to keep yourself muted, only ask question and then mute yourself. So I was telling that if you go for a general, you can say consent, then you will find that Windows 7 and MS Office 7, they are the most versatile and we can say that they're the easiest operating system and easiest office to handle. So if you have already 10 in your computer, Windows 10 or MS Office 10, then it's okay. If you are planning to take some, take one either, then I will suggest go for 7. It is the easiest one. Okay. So what I was discussing that we have discussed all the basics of computer. Now, what we need to understand, now you all know that how to handle an email account and how to open internet, how to surf through Google. You all know that, all easy one. Now, what we have to learn now mainly is MS Office Word, MS Office Excel, and MS Office PowerPoint. These three are the main, you can say, programs which we need to understand, which we need to have a command on. And this is going to help you in your future, in your job, everywhere. Okay. So आई थिंक अभिनव ने और हर्ष ने आप लोगों ने वर्ड को एक्सेल को और पावर पॉइंट को देखा होगा यस और नो देखा है ओके नाउ द ओनली थिंग इज दैट कि आई नो वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट एंड क्या मुझे उस पर काम करना आता है फाइन तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट ये तीनों क्या है आपने देखा हुआ है आपके कंप्यूटर पे वर्ड भी है एक्सेल भी है पावर पॉइंट भी है बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस किस सिचुएशन में किसको इस्तेमाल करते हैं सो बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट वर्ड एंड एक्सेल एंड पावर पॉइंट प्लीज टेल मी अभिनव व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ये तीनों पे हम क्या काम करते हैं and then I'll ask Harsh also, and then I will tell you my point of view. Abhinav. Abhinav, where are you? Sir, for billing and doing works. मुझे आप बताओ वन बाय वन वर्ड पे आप क्या कर सकते हैं एक्सेल पे आप क्या करते हैं एंड पावर पॉइंट पे आप क्या करते हैं वन बाय वन वॉट एवर यू नो इट्स ओके Abhinav. Abhinav, are you hearing me? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है एक तो तुम हमेशा कैमरा ऑफ रखते हो पता ही चलता है कि अभिनव वहां पर है भी कि गायब है हर्ष आई कैन सी कि हर्ष बैठा हुआ है कंप्यूटर पे एंड वो सुन रहा है
अभिनव सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, सोएब सो गया है, कंबल ओढ़ लिया है, क्या मालूम। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है अभिनव के कनेक्शन में। हर्ष, यू टेल मी, आपके हिसाब से वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट से हम क्या करते हैं? नहीं, हर्ष और सलमान clear? बाप रे। सर हेलो सर, हाँ, मैं लैपटॉप में सब हो नहीं रहा है ठीक से। ओके। हर्ष, हर्ष अपने को म्यूट करो। बाप रे, हर्ष के तो बैकग्राउंड में इतना साउंड है, पर लगता है कोई लड़ाई कर रहा है। हाँ अभिनव, चलो। सर रिजॉइन करते हैं सर। हाँ, मेरा सवाल था कि पता नहीं आप लोग के, पता नहीं घर में इतनी आवाज क्यों रहती है। बाप रे बाप। हर्ष हर्ष हर्ष, बहुत साउंड है, बहुत साउंड है आपके यहाँ। आप लोगों को अपने घर पे बताना चाहिए कि भाई अब मेरा 40 मिनट से क्लास है, तो प्लीज 40 मिनट के लिए कोई आवाज ना करे, या आपका रूम आप अपने को लॉक कर लीजिए, कहीं पर रूम में बंद कर लीजिए, ताकि कोई आवाज ना आए। अदरवाइज जूम पे क्लास करना बहुत टफ है अगर साउंड है तो। वापस आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। आवाज आ रहा है। हाँ हेलो, now is it clear? हाँ, am नाउ I इट्स क्लियर। audible? हाँ, यस, यू आर आल्सो ऑडिबल नाउ। Sir, it's ओके। too bad weather in Patna now. हाँ, बिकॉज ऑफ रेन आई थिंक मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, सो Yes. आई वाज आस्किंग अभिनव कि आपके हिसाब से वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट से हम क्या करते हैं? Sir, I can't explain points. आपको क्या मालूम है, मतलब वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में कुछ भी आपको मालूम है या कुछ भी नहीं मालूम है? Sir, I know. हाँ, तो जो भी आपको मालूम बताइए। Sir, we used to preparing bill, बिल कहाँ attendance of बनाते हैं? students. बिल Yes, कहाँ sir. बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं, MX Excel. किससे? MX एक्सेल Excel. का बनाते हैं, ओके ठीक है, आप बिल बनाते हैं और क्या करते हैं? Sir, attendance of students. ओके, अटेंडेंस। Records, sir, records of students. ओके ओके Marks, ओके, marks, and so much thing. ठीक है। व्हाट वी डू ऑन वर्ड? What, sir? वर्ड पे क्या करते हैं? Word. No, sir. कोई आइडिया नहीं है। पावर No, sir. पॉइंट पे आइडिया है? नहीं आइडिया है, ओके, कोई बात नहीं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हर्ष, नाउ यू अनम्यूट and you tell me what is your understanding of word and excel and powerpoint? Sir, my understanding on Excel is used to organize data and to perform any analysis or function. Okay, okay. And sir, Word? PowerPoint is used to do a presentation. Mm-hmm. And Word is used for Word is used to make something
To make a copy or no, Sir, 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 we what use is बीच में नहीं, बीच में नहीं अभिनव, type जब वो or बोल रहा okay, है sir. तो बीच में, हाँ, Okay, sir. other work. To save documents. नेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. सो नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ एंड आई विल एक्सप्लेन यू. Okay, okay, okay. First, let me go for screen sharing. Okay, now you can see my screen. Yes, sir. Okay. अब आप देखो, मैं पहले ओपन कर रहा हूँ वर्ड. ओपन हो रहा है भाई. एक्चुअली थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत है इसमें. रिसेंट देखते हैं, कोई ओपन करके. इससे अच्छा तो मैं अपने ही लैपटॉप पे करूँ, ज़्यादा अच्छा. ओके, आई एम कमिंग टू ऑन माय लैपटॉप. ये इस पे भी नहीं हो रहा है. हाँ, यस, नाउ इट्स ओपन. अभी आपने देखा यहाँ पर वर्ड खुल गया है, राइट. सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं लेटर लिखने में, नोटिस लिखने में, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अगर मुझे लिख करके देना है किसी को, तो हम यूज करते हैं एमएस वर्ड. जैसे कि मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं. टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, है ना सर. सब्जेक्ट. तो ऐसा करके इसमें हम कोई एप्लीकेशन या लेटर या नोटिस हम हमेशा वर्ड में ही टाइप करते हैं. जो हम अपना बनाते हैं रिज्यूमे वगैरह, बायोडेटा बनाते हैं, वो भी हम बनाते हैं वर्ड पे. अब सो आपने देखा जो मैं लिखा है, आपको दिख रहा है. टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, सर, सब्जेक्ट लिखा आपको.
Yes, sir. ओके ओके। अब आप देख रहे होंगे इसके ऊपर में बहुत सारे, ये जो आपका मेन्यू बार है, इस मेन्यू बार पे बहुत से सारे आइकॉन्स बने हुए हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो आपको दिख रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में कैलिब्री, CALIBRI, जहाँ पर मेरा माउस अभी है, दिखा आपको? ये है फोंट, Yes, sir. Writing style. FONT, फोन। ये आपको मालूम है कि राइटिंग स्टाइल है। हम अपने सारे जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उनको हम सेलेक्ट करके, जैसे कि हम यहाँ आ गए और मैंने इन सबको कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, बगल में वो विंडो खुल गया। अब वो बोलता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको विंडो दिख रहा है बगल में, तो वहाँ लिखा हुआ है कैलिब्री, CALIBRI। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन खुल जाएगा और फिर आप वहाँ से चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा फोंट, किस स्टाइल में अपने इस लेटर को लिखना है। ये आपको एक चीज चेक करना होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैलिब्री के बगल में जहाँ जहाँ मैंने इसको किया, अब आप देखिए यहाँ पर फोंट साइज है। उसके आप बगल में आएंगे तो क्या है, उसके बगल में आप आएंगे तो वापस वही है, साइज, पूरे साइज को बढ़ाने और घटाने का है। जो पहला ए, बड़ा वाला जो ए है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा, और जो उसके बगल वाला है उस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। सो ओवरऑल जितना आपने सेलेक्ट किया है उसे बड़ा छोटा करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बगल में जो आपका बी है, दैट इज बोल्ड करने के लिए है, उसको कर दिया मैंने तो ये बोल्ड हो गया। उसके बगल में, हाँ, बड़ा कर, मोटा मोटा करने के लिए है। उसके बगल में है आई, आई इज कॉल्ड इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। आपका जो लिखने का स्टाइल है, बी से बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और आई से इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। वापस क्लिक कर देंगे तो वापस जो पहले था वहां पर आ जाएगा। जो आपका यू है उसमें लिखा हुआ है अंडरलाइन, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका सारा जो भी सिलेक्ट किया हुआ है इट विल बी अंडरलाइंड, ठीक है। तो हमने देखा फोंट, फोंट साइज, उसके बाद ओवरऑल पूरे फोंट साइज को ग्रो करना, और ओवरऑल फोंट साइज को श्रिंक करना, ग्रो करना और श्रिंक करना। उसके बगल में बोल्ड करना है, उसके बगल में इटैलिक है, उसके बगल में अंडरलाइन करने के लिए है, एंड देन हाईलाइट। हाईलाइट मतलब अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने लेटर में या नोटिस में किसी खास शब्द को, किसी खास सेंटेंस को हाईलाइट करना है, उसको मुझे येलो से करना है हाईलाइट, तो मैं क्लिक कर दूंगा, वो उतना येलो से हाईलाइट हो जाएगा। तो जिसको भी आपको करना है हाईलाइट, उसको आप चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इस हाईलाइट वाले बटन से आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। इसके जो बगल में है दैट इज फोंट कलर। हाईलाइट में क्या होता है, पूरा का पूरा वर्ड येलो हो गया, बट उसके जो बगल में जो ए लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका फोंट चेंज करेगा। जैसे मैंने अभी क्लिक किया, इस पे जाता हूँ, इसके ऊपर में बहुत सारे कलर्स इसके अंदर में है, मैंने एक कलर चूज करके क्लिक कर दिया। सिलेक्ट नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड देन मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये आपका फोंट जो है वो रेड हो गया। तो फोंट भी हम रेड कर सकते हैं, और फोंट को रेड करने के साथ साथ आई कैन ऑल्सो गो फॉर हाईलाइट। तो रेड भी हो गया और मैंने ग्रीन से उसको हाईलाइट भी कर दिया है। उसके आप बगल में आप आएंगे तो क्या है, आप जितने आपने जो कुछ भी किया है, आप उस फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपने फॉर्मेट किया है, यानी कि जो भी आपने उसको काम किया है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब आप देखिए वापस पहले वाले पे चला आया, ठीक है। तो और इसके बगल में ये जो है, ये आप जो दिख रहे हैं बगल में, जो जो मैंने अभी टच किया है वो बुलेट है। मुझे अगर सपोज मुझे पॉइंट वाइज लिखना है 1 2 3 4, या मुझे कोई सिंबल ऐड करना है, तो यहाँ पे सारा सिंबल है। तो मैं यहाँ पे आ गया सपोज, और मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने अब यहाँ पर डाल दिया बुलेट।
उसके अलग अलग स्टाइल है। मैंने चूज कर लिया स्टार, तो आप देखो स्टार आ गया। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया फर्स्ट, वापस क्लिक करूंगा, वापस सेम बुलेट। आप जो एक बुलेट चूज करेंगे वो आपको बार बार आपको मिलता रहेगा। सो फर्स्ट, Sir, सेकेंड, थर्ड, मिल गया आपको बुलेट। बुलेट के जो बगल में है वो नंबरिंग के लिए है। बुलेट में आपका सिंबल है और नंबरिंग में आपको ABC 1 2 3 ये सब आपको मिल जाएगा। आपको तो नंबरिंग करना होगा तो उसके बगल वाला दबाएंगे, और बुलेट्स डालने होंगे तो पहले वाला दबाएंगे। सब पे लिखा हुआ है और सब पे पूरा कुछ सब कुछ क्लियर है, मतलब आप कुछ खास सोचने के लिए है ही नहीं। अब जो एक और वापस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाला बटन जो है, जहाँ पे मैंने अभी माउस रखा हुआ है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक आपका है लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई। इसको समझना पड़ेगा। सपोज मैंने ये चूज कर लिया टू टू द प्रिंसिपल, एक मिनट, ये वाला मैं चूज करता हूँ, टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल। अब अगर मैं इसको लेफ्ट पे करता हूँ तो ये लेफ्ट में है। अब मैं जाता हूँ इसको सेंटर में कर दिया, देखो अब ये सेंटर में आ गया, टू द प्रिंसिपल, ये सेंटर में आ गया। अब मैं इसको करता हूँ राइट, तो कहाँ चला गया, राइट चला गया। और मैं इसको करता हूँ जस्टिफाई, तो जस्टिफाई में क्या होता है, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में डाल देता है। यानी कि अगर आपने कोई चिट्ठी लिखी, नोटिस लिखा, और आपने उसको जस्टिफाई कर दिया, तो आप पाएंगे कि हर एक लाइन जो है वो सेम साइज में आ गया है, जस्टिफाई हो गया पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा चिट्ठी आपको देखने में काफी अच्छा दिखता है। तो ये जो है, ये इसके मेन मेन आपके जो है, यही इसका वर्ड में आपको देखना है कि मुझे फ़ॉन्ट कौन सा चूज करना है, उस फ़ॉन्ट का साइज क्या रहेगा, राइट। उसके बाद मैं उसको बोल्ड कैसे करूंगा, मैं उसको इटैलिक्स में कैसे लेकर के जाऊंगा, मैं उसको अंडरलाइन कैसे करूंगा, excuse me, हाईलाइट sir. कैसे। हाँ बोलिए। Sir, think we write a story in Word and we mention a ओके, word principal so many times and we want to change principal into sir. So how we change it? उसमें उसमें आपका फिर ऑप्शन है, वो फिर आप कंट्रोल फाइंड पे जाएंगे, और कंट्रोल फाइंड पे जाकर के इसको कंट्रोल इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। 1 मिनट, Yes, sir. उसका ऑप्शन है। आप किसी पार्टिकुलर एक वर्ड को चूज कर सकते हैं कि भाई मुझे इस पार्टिकुलर वर्ड को इस वर्ड में चेंज करना है। एक मिनट, इसको मैं अभी देखता हूँ इसको कैसे करते हैं। ये सब इस पे है, कमांड पे है। लाइक मैंने फिर से लिखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फिर से लिखता हूँ प्रिंसिपल। ओके, नाउ आई हैव डन द, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शंस देखना पड़ेगा। ऑप्शंस, कट कॉपी पेस्ट के, कंट्रोल F करता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है, इसको चूज करने का, और चूज करके इसको पूरा रिप्लेस कर देने का। हर्ष 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 हर्ष, प्लीज प्लीज। कितना साउंड है हर्ष तुम्हारे बैकग्राउंड में, आई डोंट नो। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हैं आपस में, दे आर टॉकिंग। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा सवाल पूछा है इसने। मैं इसको अभी थोड़ा सा, मुझे क्या होता है ना कि हम जो काम डेली नहीं करते हैं वो काम फिर हमारे दिमाग से निकल जाता है, एंड दैट टू विंडोज एंड दोनों का जो है वो एक प्रॉब्लम है। कौन सा खुल गया, ये और खुल गया। तुम्हारा इसमें करते करते पता नहीं कुछ और डॉक्यूमेंट बंद कर दो। ओके ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा उसका उसका एक काम हम करेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू द, देखो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम माउस से जाकर के पूरा चेंज करें या पूरा काम करें, और एक ऑप्शन है कि हम अपने कीबोर्ड से करें। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स।
जिससे कि हमको माउस छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो वो पूरा का पूरा हम चेक करते हैं, और उसी में वो ऑप्शन है उसको कंट्रोल, उसको फाइंड करना, और फाइंड करके उसको एक दूसरे वर्ड से पूरा का पूरा रिप्लेस कर देना। इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल यू कैन राइट टीचर। जहां जहां भी वो सर्च कर लेगा, जहां जहां भी प्रिंसिपल उसको मिलेगा, उसको वो चेंज कर देगा टीचर में। क्योंकि इस मेरे मेरे को इस पे हाथ साफ बिल्कुल भी नहीं है, सो मैं थोड़ा सा आई एम स्ट्रगलिंग ऑन दिस। ये पता नहीं अभी अचानक से कौन सा ही विंडो खुल गया है, क्रोम फोटोज। ओके ठीक है, और बताओ। और एक तो अच्छा तुम्हारा पॉइंट था अभिनव, और बताओ। ये जो है कहाँ से आ रहा है ये, एक्चुअली इसका पास और प्रॉब्लम भी है इसमें ना, ऊपर का पूरा का पूरा ये। हाँ ओके। अब जो है इसमें इसमें मेरे को इंसर्ट फाइल। ओके इसका ऑप्शन। ओके ठीक है, मैं उसको मैं रखता हूँ, उसको मैं अगले इसमें तुम्हारा मैं क्लैरिफाई करूंगा। अच्छा, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम बोथ ऑफ यू, फ्रॉम अभिनव एंड हर्षराज, कि आप लोग एक एक लिखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर a leave of 1 week, है ना। आप उसको वर्ड पे टाइप करेंगे, और वर्ड पे टाइप करके यू विल शेयर विथ मी ऑन व्हाट्सएप। अब पॉसिबिलिटी है, आप टाइप कर लेंगे, टाइप करके Sir, आप। हाँ sir, my word is not opening. Can I see? Can you see it? What's problem? तुम्हारा वर्ड नहीं खुल रहा है, No, sir. तो मैं कैसे देखूंगा। Sir, अपना maybe I अपना share screen. अपना प्लीज शेयर द स्क्रीन, देखते हैं। Okay, sir. हर्ष यू कैन ओपन योर वर्ड। Yes, sir. ओके ओके, so the task is you have to write an application. हर्ष अपने को म्यूट करो, बहुत साउंड है। ओके हाँ, आपका वर्ड है कहाँ इसमें। आई कांट फाइंड द आइकॉन ऑफ वर्ड। अभिनव कहाँ है आपका आइकॉन, कहाँ है वर्ड का। सर सेकंड नंबर वाला में सबसे लास्ट में, सेकंड नंबर वाले में ये है क्या। ऑफिस के बगल में जो अच्छा सबसे जहाँ लास्ट वाला बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हाँ दिख रहा है मेरे को, जो जो ग्रीन है वो एक्सेल है, जो हाँ हाँ ओपन किया इसने। पासवर्ड लगा के रखा है। Sir, I write the password, but it's not taken. ये लैपटॉप किसका है, पापा का है ना। Yes, sir. पापा से पूछो कि ये वर्ड में खोलने में ये पासवर्ड मांगता है, इसमें पासवर्ड क्या है। Okay, sir. तो आपको पूछना पड़ेगा ना। आई थिंक उन्होंने शायद आपके एमएस ऑफिस में पासवर्ड लगा दिया है, तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगा शायद। एक बार आपको पूछना पड़ेगा, Okay, ठीक sir. है। या फिर मेरे ख्याल से अभी आप कहाँ हो, अपने घर पे आ गए कि पटना में ही हो अभी। ऑफिस भी सर पटना में ही है। तो पटना में ही हो, अदरवाइज घर पे होते तो तुम्हारा डेस्कटॉप है, उस पर काम कर सकते थे। पापा से पूछ करके इसका पासवर्ड बाहर निकालो, और
सब लोग जो है एक एक उस पर आप लिखो एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 1 वीक लीव, ठीक है, आप लिख के मुझे भेजो। एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को। एक, आपने जो लिखा है एप्लीकेशन, उसमें क्या मतलब अच्छा लिखा है, कैसा लिखा है, क्या लिखा है, वो देखेंगे हम एक बार। और सेकंड, जो अभी अभिनव ने पूछा कि सर ये शॉर्टकट्स कैसे करेंगे, कोई वर्ड को रिप्लेस करना है या फिर मुझे कुछ भी, अगर मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, मुझे फोन चेंज करना है, तो क्या क्या ऐसे हमारे पास कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, ताकि हम बिना टच किए, बिना माउस को टच किए, हम कीबोर्ड की हेल्प से ही वो सारा काम कर दें। आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ शॉर्टकट्स। शॉप में आपके पास माउस मौजूद है, इस कारण से क्या होता है कि आप बार बार माउस से ही काम कर लेते हैं, वो आपके लिए आसान है माउस से करना। और उसको कीबोर्ड को टाइप करना थोड़ा सा उसको याद रखना पड़ता है, याद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस में आना पड़ता है। जैसे कि सेव करने के लिए कंट्रोल एस है, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स है, राइट। उसके बाद तुम्हारा पेस्ट करने के कंट्रोल पी है। ये सारे कमांड्स हैं, लेकिन चूंकि माउस में बड़ा आसान है उसको कट कर लेना, पेस्ट कर लेना टच करके, तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे कीबोर्ड को कम इस्तेमाल करते हैं। और धीरे धीरे अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, यू विल फॉरगेट। फाइन, तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ जो कमांड्स हैं उसको शेयर कर लेंगे और उसको धीरे धीरे ओपन करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि फिर हमको एक लंबे समय तक वो याद रहेगा। देन बोलते हैं कि जो आदमी जिसको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, मीन्स जिसका काम ही कंप्यूटर में काम करना है, देन आपको धीरे धीरे माउस छोड़ करके कीबोर्ड से काम करना चाहिए। फाइन, तो आप लोग क्या कीजिए कि कल मतलब परसों हमारे क्लास है, आप लोग कल तक मुझे भेज दीजिए। और जब आप लिखेंगे एप्लीकेशन, तो आप उसमें जो सारे हमने डिस्कस किए हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, हाईलाइट करना, फोंट का साइज छोटा बड़ा करना, उसके बाद हमने देखा कैसे हमें अलाइन करना है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई। ये सब का आप यूज करते रहिए। मतलब कहीं पर आप किसी वर्ड को हाईलाइट कीजिए, कहीं पर फोंट ऊपर नीचे कीजिए, कहीं पर फोंट का स्टाइल चेंज कीजिए, ताकि जो हमने सीखा, राइट। हर्ष, आपको समझ में आया टास्क? ठीक है, सो यू हैव टू यूज ऑल Sir, द कमांड्स। अभिनव, हाँ sir, please repeat the task. I was disconnected. I ओके, can't hear. सो आई Your टोल्ड कि voice is आप जब breaking. लिखेंगे, व्हेन यू विल, okay, now I will tell you again. When you are writing the application, try to use all the commands which we have discussed. कहीं पर आप बोल्ड कीजिए, कहीं पर इटैलिक कीजिए, कहीं पर हाईलाइट कीजिए, कहीं पर फॉन्ट का स्टाइल चेंज कीजिए, कहीं पर अलाइन लेफ्ट राइट को देख लीजिए। यानी जो कुछ भी हमने देखा और उस पर आपको ट्रायल कर लेना है, ताकि चेक कर लीजिए Okay, कि sir. मुझे ये Okay, sir. कमांड समझ में आया कि नहीं आया। एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास हम MS वर्ड के सारे जो शॉर्टकट्स हैं उसको हम समझ के लेंगे। और जो आप मुझे भेजेंगे अपना होमवर्क, मैं उसको एक बार देख लूंगा, उसमें कहाँ कहाँ आपको कुछ और गाइड करना है, नहीं करना है, राइट। Yes, sir. So please send me your homework tomorrow